Fine. So, good morning, all of you. Today, we are going to start with a new and a fresh topic called as probability distribution. It is not like we are studying this chapter for the first time. Even in class 10th, we have done probability distribution. So, I will start revising probability distribution from 10th standard. First concept of probability distribution starts with random experiment. So what is random experiment, students? See, experiment means outcomes, right? Whenever we perform experiment, we expect some outcomes out of it, right? So when an experiment is said to be a random experiment, so random experiment is an experiment in which we know all possible outcomes, all possible outcomes. We know what results are going to come after this experiment, but but none of them is predictable. None of them is predictable. We cannot predict which outcome will come. Yes, we know all the possible outcomes, but none of them is predictable. इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड एग्जांपल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड. अब अगर मैं बोलूं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग अ कॉइन, मुझे बताओ क्या इसके आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स मालूम है? यस और नो? इफ आई टॉस अ कॉइन, तो क्या आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स मालूम है बच्चों? यस, इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना जो आपको मालूम ही नहीं है. सो यू नो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, बट व्हेन यू बिफोर यू टॉस अ कॉइन और उसका रिजल्ट आए, आप बता सकते हो कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा? कैन यू प्रिडिक्ट इट? So it means tossing a coin is a random experiment because we know all the possible outcomes, but I cannot predict it. Similarly, throwing a dice. Throwing a dice. Now, when we throw a dice, we know all the possible outcomes: one, two, three, four, five, six. But before we throw a dice, can we predict that what is going to come? So this is also an example of random experiment, right? After random experiment, the second topic is sample space. Now what is sample space, student? Sample space is a set of collection of all the outcomes of a random experiment. मतलब जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो सारे पॉसिबल आउटकम क्या थे? एच कॉमा टी था, तो एच कॉमा टी उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा. टू कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी. थ्री को किया तो हमको मालूम है 8 सैंपल पॉइंट्स होते हैं. एक डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6. टू डाइस को थ्रो किया 1 1 1 2 1 3 1 4 36.
तो सैंपल स्पेस क्या होते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स. इज इट क्लियर एवरीवन? तो वी राइट S equal to curly bracket and the elements separated by comma. इसको सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं हम. यस. ओके. After sample space, the number of points, sample points is given by n of s, that you know. Number of sample points. Okay. Next, third point. Event. Now, what is event? So, event is also like a sample space. It also contains outcomes, but event is a set of favorable outcomes. फेवरेबल आउटकम. जैसे मैंने अगर एक डाइस थ्रो किया तो मुझे सैंपल स्पेस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिला. बट अगर मैंने बोला ए एक इवेंट है जिसमें मुझे ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एक इवेंट हो जाएगा जिसके नंबर ऑड होना चाहिए, तो ए के अंदर क्या होगा? 1, 3 और 5 होगा, राइट? तो आप देखो वो भी तो पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस ही हो गया, बट इट इज अ फेवरेबल. मतलब वो जो कंडीशन हमने डाला ऑड का, इवन का, या वॉट एवर इट इज, उसको सेटिस्फाई करने वाले ही पॉइंट्स इवेंट में रहेंगे. तो एक चीज आप श्योरली बोल सकते हो कि इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ये सर नो बच्चों, इवेंट में जो भी होगा वो सैंपल स्पेस में से ही होगा. कभी ऐसा हो सकता है इवेंट में सैंपल स्पेस से अलग कोई पॉइंट है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो सारे आउटकम्स है. इवेंट में तो कंडीशन डाल के जिस जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही वाले आउटकम होते हैं, राइट? तो ये हो गया इवेंट. हमको ऐसे इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. So probability of any event, for example A, is given by number of elements in that event upon sample space. Number of element in that event upon sample space. जैसे throwing a dice में odd का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो A के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5, और S के अंदर 6 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हो जाएगा 3/6, यानी 1/2. क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में 2-3 चीजें नोट करनी जैसी है. कभी भी प्रोबेबिलिटी यस 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, 1 से बड़ा, 1 से इक्वल या 1 से छोटा होता है. प्रोबेबिलिटीज का रेंज 0 और 1 के बीच में ही होता है. लोवेस्ट इट कैन बी 0. वो 0 कब होगा? जब ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो 0 अपॉन एन ऑफ एस विल बिकम 0. और 1 कब होगा? क्योंकि एन ऑफ ए मैक्सिमम क्या हो सकता है? एन ऑफ एस हो सकता है. हो सकता है इवेंट में सारे वैल्यूज आ जाएंगे जो सैंपल स्पेस में, इन दैट केस वो कैंसिल हो जाएगा और 1 होगा. अदरवाइज हमेशा आंसर इसका 0 और 1 के बीच में ही होगा. क्लियर है सबको? ओके. तो ये तो था, हमने 10th स्टैंडर्ड तक ये सारी चीज़ें कुछ पढ़ी थी. अब हमको 11th स्टैंडर्ड में इसके कंटिन्यूएशन में हमको पढ़ना है. हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल. तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब हम किसी आउटकम आने वाले को वेरिएबल एज्यूम करते, जैसे एक कॉइन को टॉस किया मैंने,
अब मुझे मालूम है हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, बट मैंने एक वेरिएबल अज्यूम किया, लेट एक्स गेटिंग हेड या नंबर ऑफ हेड। समझ में आ रहा है? तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर मैं किसी वेरिएबल को एज्यूम करता हूं, उसको रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। यस एवरीवन, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो आई कैन एज्यूम एक्स इज अ नंबर अपीयर्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर मैंने वेरिएबल एज्यूम किया, तो रैंडम वेरिएबल। ओके, नाउ ये जो रैंडम वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट में लिखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, DRV। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, CRV। अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? तो ऐसे वेरिएबल विच टेक्स वैल्यूज बिलोंग्स टू इंटीजर्स ओनली। मतलब अगर वेरिएबल का वैल्यू 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ऐसे ही वैल्यूज होते हैं, तो हम उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू रैशनल होता है, रैशनल मतलब 2/3 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, ऐसा कोई अगर वैल्यू आ गया, तो हम उसको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सबको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिस्क्रीट मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस में डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर? I'll once again explain the difference between discrete and continuous. Discrete means when the variable takes values belongs to integers. अगर वैल्यूज इंटीजर्स होने वाले हैं x के, तो उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। और जब कंटिन्यूअस मतलब वो डेसिमल में भी हो सकता है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 5 बार मैंने कॉइन को टॉस किया, एज्यूम करता हूं मैं एक्स इज नंबर ऑफ हेड, एक्स इज नंबर ऑफ हेड। यहाँ देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, और मैंने क्या एज्यूम किया है कि लेट एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। तो मुझे बताओ हेड आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी बार हेड आ सकता है? अगर मैंने किसी कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया, तो हेड कितनी बार आ सकता है? चलो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 बता रहे हो आप लोग। जरूरी है मैं अभी आप लोग कॉइन आपके हाथ में 5 बार टॉस करो, क्या 5 बार हेड आएगा? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। तो क्या हो सकता है? तो पहला हो सकता है जीरो हेड, मैंने पांचों के 5 बार टॉस किए, एक भी हेड नहीं आया, हो सकता है ना? तो उसको मैं बोलूंगा जीरो हेड। हो सकता है एक ही हेड आया, हो सकता है 2 हेड आएगा, हो सकता है 3 बार में हेड आया, हो सकता है 4 हेड आया, या ये भी हो सकता है कि सारे 5 टाइम्स मैंने किया और पांचों के 5 बार मुझे हेड ही आया।
राइट। आप अब देखो ये जो वैल्यू आया है x का, ये कैसे वैल्यूज है, इंटीजर से कि रैशनल है? डेसिमल्स में है क्या ये? नहीं, ये तो इंटीजर्स है। इसका मतलब ये जो हो गया ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है। वही अगर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया कि सपोज अ पर्सन गोज टू जिम्नेशियम रेगुलरली, एक बंदा रोज जिम में जाता है, और मैं लिखता हूं लेट एक्स इज अ रिडक्शन इन हिज वेट। आप मुझे बताओ रिडक्शन इन हिज वेट का वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं? अदिति ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये एक्स का पॉसिबल वैल्यूज है। यहाँ पर हम सैंपल स्पेस किधर लिख रहे हैं? सैंपल स्पेस तो अलग होगा ना, एच 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 वैसा बहुत सारा होगा। यस, रिडक्शन इन इज वेट कैन बी नेगेटिव रिडक्शन थोड़ी ना होगा। मैं ऐसा बोलूंगा मेरा -1 kg कम हो गया, अरे 1 kg कम हो गया ऐसा बोलूंगा, 2 kg कम हो गया। बट आपको क्या लगता है रिडक्शन इन इज वेट हमेशा रैशनल ये इंटीजर होगा क्या? नहीं, हो सकता है आज मैंने 0.2 kg कम किया, कल मैंने 0.3 kg कम किया, यस और नो? एक हफ्ते के बाद मैंने देखा तो मेरा 1 kg कम हो गया है। इट कैन टेक एनी वैल्यूज, एनी रैशनल वैल्यूज, isn't it? So this random variable x is a continuous random variable and normally ना हम पहचान लेंगे, जैसे अगर ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में x लेस देन 2, अब x लेस देन 2 है तो ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? अब लेस देन 2 तो कुछ भी हो सकता है ना, 1.9 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब कभी भी इस तरीके का सिंबल यूज करेगा x के लिए तो समझ जाने का कि वो कंटिन्यूअस है। और डिस्क्रीट होगा ना तो ऐसा कॉमा कॉमा करके ही लिखेगा वो, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लिख सकते ना। x लेस देन 2 में तो सब कुछ आ सकता है, 1.1 1.2 1.01, एनीथिंग कैन कम। क्लियर एवरीवन about discrete and continuous? Okay, now अब ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आए हैं उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ द प्रोबेबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the possible values of the random variable। तो अभी हमारा फोकस हम डिस्क्रीट पे करेंगे। वन एक्सरसाइज डिस्क्रीट के ऊपर है, एक एक्सरसाइज कंटिन्यूअस के ऊपर है। हमको अब दोनों का डिफरेंस मालूम है। अब हम डिस्क्रीट, अब आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज के क्लास में, इट इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, so let us take few examples and write down its PDF, probability distribution function। Suppose first example, a coin is tossed। See, when a coin is tossed, we know the sample space h comma t, isn't it? ये सैंपल स्पेस हो गया मैंने, तो नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स क्या हो गए? 2। अब मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम किया कि लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे हेड कितनी बार आ सकता है? हेड कितनी बार आ सकता है? यस, 0 या तो 1। अब 0 कैसे आया? अब सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया और मुझे टेल आया।
अभी टेल आया तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना हेड आया मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, सर एक भी हेड नहीं आया ना, 0 हेड आया। वैसे ही जब हेड आएगा तभी मैं बोलूंगा ना 1 हेड, राइट। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ हेड्स आर 0 एंड 1। ओके, ये समझा सबको 0 1 कैसे आया बच्चों। तो 0 का मतलब यहां पर हुआ टेल और 1 का मतलब हुआ यहां पर हेड। अब हम क्या करते हैं, इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 0 हेड विल कम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड विल कम। तो हम एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर x लिखते हैं और फिर उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। x के सामने x के पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं 0 एंड 1। ओके, अब प्रोबेबिलिटी तो होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस तो 2 है हमको मालूम है, तो अपॉन 2 तो आने वाला ही है। अब 0 के लिए जीरो कब आएगा, कितना चांसेस है कि 0 हेड आ जाए, तो एक ही चांसेस है ना, सैंपल स्पेस 2 है, उसमें से 0 हेड मतलब टेल, 0 हेड मतलब टेल, राइट, एंड 1 हेड मतलब एच। तो 0 हेड का एक चांसेस है और 1 हेड का भी एक ही चांसेस है, राइट। तो इसका जो पीडीएफ हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। Everyone understood? Okay. So this is one example of getting. So this table is called as PDF. PDF, probability distribution function. Sometimes it is also called as probability density function. Let us take another example. Suppose a coin is tossed twice. A coin is tossed twice. Okay. I am assuming x is number of heads. So can you please tell me what are the possible values of x here? अगर मैंने किसी एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हेड आने की।
यस, इट कैन बी जीरो हेड। जब मैंने कॉइन टॉस किया और दोनों बार टेल ही आया, टीटी आ सकता है ना, तो टीटी के केस में मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास जीरो हेड है। टीएच और एच टी के टाइम क्या बोलूँगा, मेरे पास वन हेड है। और एच एच के टाइम क्या बोलूँगा, मेरे पास टू हेड है, राइट। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम इसका पीडीएफ लिखेंगे। सो यहाँ पर 0 1 2 डेफिनेटली अपॉन 4 तो आने वाला है क्योंकि सैंपल पॉइंट्स 4 है। अब मुझे बताओ जीरो हेड कब आएगा। तो जीरो हेड मतलब टीटी ना, टीटी आएगा तभी तो जीरो हेड बोलेंगे। इसका मतलब जीरो हेड आने का चांसेस एक ही है जब टीटी आएगा। तो वन हेड में कभी चांसेस है। तो टीएच आया तो उसमें वन हेड है, एच टी आया तो उसमें वन हेड है, यानी वन हेड आने के टू चांसेस हैं। और टू हेड आने के कितने चांसेस हैं, एच एच, एच एच आएगा तभी टू हेड होगा, तो उसके वन चांस है। So this way we complete the PDF of this random variable. Understood? Okay. Let us take another example now. Here you will answer me. I will just write down the experiment here. So these are the 8 sample points. Here also I am assuming let x as number of heads. What are the possible values of heads? Come on, tell me. What are the possible values of heads? Yes, very good. It can be zero head, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड। जीरो हेड मतलब जब टी 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 होगा तो जीरो हेड होगा। वन हेड मतलब टी टी एच,
THT, HTT, ये तीनों में 1 हेड है। 2 हेड THH, HTH, HHT, ये तीनों में 2 हेड है। और 3 हेड HHH। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इसका PDF 0, 1, 2, 3 अपॉन 8 तो रहने वाला ही है सैंपल पॉइंट्स। अभी 0 हेड कितनी बार आएगा? तो हमने देखा 0 हेड मतलब एक ही चांस है, TTT 1। 1 हेड के 3 चांस थे, 2 हेड के 3 चांस थे, और 3 हेड का 1 चांस है। तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। Clear everyone? Okay, let us take one more example. Fourth, a dice is thrown. Then we get a sample space as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, number of sample points is 6. Let x is number appeared on the uppermost face of the dice. Appeared on the uppermost face of the dice. बताओ क्या पॉसिबिलिटीज होगा? तो x क्या बोला है? नंबर अपीयर्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस। तो अगर मैं डाइस को थ्रो करूं तो मुझे क्या क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये नंबर्स आ सकते हैं ना, राइट? यस। तो अब इसका PDF लिखना पड़ेगा हमको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी है। तो 0, सॉरी 0 तो नहीं होगा, 0 तो नहीं आता ना, 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सैंपल पॉइंट्स तो 6 है, तो अपॉन 6 तो हर जगह होने वाला है। अब हमको देखना है 1 आने का चांसेस क्या है। तो 1 आने का चांसेस क्या है? एक बार मतलब 1 नंबर कितना चांसेस है? तो 1 आने का चांसेस एक ही है ना, एक ही बार आ सकता है। 2 आने का चांसेस एक ही है, 3 आने का चांसेस एक ही है, 4 आने का चांसेस एक ही है, तो सबका चांसेस 1 ही है। So it is going to be 1/6, 1/6 everywhere. It's not 2/6, 3/6 students, right? 2/6 लिखोगे इसका मतलब 2 टाइम्स आना चाहिए ना वो सैंपल स्पेस में, बट वो तो एक ही बार आ रहा है। I hope this is clear to all. Good. Fifth example. A fair dice is thrown twice. Twice. Okay. So we know then sample space. Starting from 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, देन 2 1 से लेके 2 6, 3 1 to 3 6, 4 1 to 4 6, 5 1 to 5 6, 6 1 to 6 6. Yes, students, these are 36 sample points.
now I'm assuming let x is sum of uppermost face of the dice. uppermost face of the dice. तो मुझे बताओ आप लोग, अगर x सम ऑफ अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस है तो x के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? थिंक एंड टेल मी. यस, तो यू कैन सिंपली से कि सर सम कैन बी वन वन मिनिमम है ना, तो सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, राइट? द होल सैंपल स्पेस नहीं हो सकता. होल सैंपल स्पेस केस क्या बोल रहे हो आप? सैंपल स्पेस वन वन क्या सम है अपूर्वा? इट इज सम मतलब आंसर होना चाहिए ना, नंबर वैल्यू होना चाहिए. सम ऑफ द अपर मोस्ट फेस, तो सम मतलब इट कैन बी वन वन, इट कैन बी वन प्लस टू, इट कैन बी वन प्लस थ्री, इट कैन बी वन प्लस फोर. तो नंबर आएगा ना ऐड करने पर. तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. यस और नो स्टूडेंट्स? 5 हो सकता है, लाइक दिस मैक्सिमम 12 हो सकता है, राइट? तो अब इसका पीडीएफ कैसे होगा, ध्यान से देखो. x and its probability. x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख देंगे. 2, 3, 4, सारे वैल्यूज लिख दिए x के. नाउ सैंपल पॉइंट्स तो 36 है, तो अपॉन 36 तो हर जगह रहने वाला है, राइट? सो सब जगह अपॉन 36 लिख देते हैं. नाउ अब हम वन बाई वन देखने जाएंगे. अभी 2 सम 2 कब मिल सकता है? आउट ऑफ दिस 36 सैंपल पॉइंट्स कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जिसको ऐड करने पर 2 आता है? तो आप बोलोगे सर एक ही है, वन वन. 1 प्लस 1 ओनली गिव्स 2. So here we will write 1 by 36. 3 कौन कौन देता है? 3. तो देखो चेक कैसे करने का मालूम है? हर एक रो में चेक करने का. 1 की रो में 3 कब मिलेगा? 1 प्लस 2 1 2, और 2 के रो में 2 1. 3 की रो में तो कोई 3 नहीं देगा ना, क्योंकि 3 प्लस 1 पहला एलिमेंट 4 देता है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब इसके 2 ही पॉइंट्स होंगे. वैसे 4 कौन देगा? तो 1 की रो में 1 3, 2 की रो में 2 2, 3 की रो में 3 1. 3 एलिमेंट्स विल गिव 4. 5 की रो में 1 4, 2 2 3, 3 में 3 2, 4 के रो में 4 1. 4 एलिमेंट्स. 6 कौन देगा? तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1. 5 एलिमेंट्स. 7 कौन देगा? तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. 6 एलिमेंट्स. अब जैसे 8 पे आओगे बच्चों, 1 की रो में कोई 8 देने वाला नहीं है, क्योंकि 1 6 तो 7 हो गया ना लास्ट. अब 1 7 तो होता नहीं है. इसका मतलब अब 2 के रो में मिलेगा, 3 के रो में मिलेगा, तो एक एक कम होते जाएगा. ये हो जाएगा 5
4 3 2 और देखो 36 दे 12 देने वाला एक ही ऑप्शन होगा 6 6। तो ये आपका पीडीएफ हो गया बच्चों फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझा आप लोगों को? तो कभी कभी तो हमको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा एक्सपेरिमेंट एक्स एज्यूम करके हमको पीडीएफ फाइंड करना होगा। कभी कभी ना ऐसा पीडीएफ दिया रहता है, ऐसा बोलेगा नहीं पीडीएफ है, बोलेगा ये फंक्शन है, आपको चेक करना है कि वेदर इट इज अ पीडीएफ और नॉट। तो किसी भी टेबल को पीडीएफ बोलने के लिए दो कंडीशन है। हाउ टू चेक कंडीशन फॉर पीडीएफ। सबसे पहला, उस टेबल में जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सबके सब प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने पहले बताया 0 या 0 से बड़े, 1 या 1 से छोटे होने चाहिए। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, जब उस टेबल के सारे प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करो, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, इट शुड बी 1। इफ एनी टेबल satisfies these two conditions, we considered them as a pdf। अभी हमने जितने पीडीएफ, ये तो पीडीएफ है ही, हमने तो फाइंड किया है, बट यू कैन चेक द क्रॉस वेरीफाई दीज टू कंडीशंस। सबके सब 0 और 1 के बीच में, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में। ऐड करके चेक करो 1 आता है क्या। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 5 26 + 30 + 3 33 + 2 35 + 1 36/36 1। यहाँ पर देखो सब पॉजिटिव है 0 1 के बीच में, ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। यहाँ देखो सब पॉजिटिव है 0 1 के बीच में, ऐड करो 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8। सब पॉजिटिव, ऐड करो 1 + 2 3 + 1 4 4/4 1। सब पॉजिटिव, ऐड करो 1/2 + 1/2 is 1। So all these functions satisfies these two conditions, isn't it? So these are the two conditions for probability distribution function। अभी तक जो भी पढ़ा है उसको क्विकली रिकैप और रिवाइज करो। आई एम गिविंग यू 5 minutes।
ओके, आई थिंक सबने रिवाइज कर लिया, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक मैंने आपको अभी तक जो बताया है, ये आएगा तो ही हम आगे के सम्स कर पाएंगे, नहीं तो हमसे कोई सम नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ वेरी बेसिक, आपको ये समझ में आना ज़रूरी है। किसी को फोर्थ देखना था तो फोर्थ दिखा देता हूँ। Okay. किसी को कोई डाउट किसी कंसेप्ट में तो अभी पूछो, किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने बताया है? Okay. If you don't have any doubt, we can go to the textbook now. So this every theory we have studied everything now. So there is one more concept that I'll explain and then we will start with the exercise. ये तो था PDF, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? अब कुछ इसके सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कभी कभी PDF को PMF भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दोनों का मतलब सेम है बच्चों, ठीक है? अच्छा, PDF से हम एक फाइंड आउट करते हैं जिसको बोलते हैं CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, CDF। ओके, अब ये CDF क्या होता है बच्चों? तो ये आपका जो आपने 10th में जब पढ़ा था तो उसमें CF पढ़ा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है आपको? CF थर्ड कॉलम बनाते थे, ऐड करते जाते थे, तो बस वही है CDF। ये तो आपको क्या है, CDF के लिए पहले आपको PDF पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 हेड वाला, 0 1 2 था और उसका प्रोबेबिलिटी क्या था? तो 1/4 था, 2/4 था और 1/4 था। ये सपोज मेरा PDF है, इसका मुझे CDF निकालना है। तो CDF का जो फॉर्मूला है, जो नोटेशन है, वो है कैपिटल F X। कैपिटल F ऑफ X स्टैंड्स फॉर CDF। ओके, और वो फाइंड कैसे करते हैं? तो सेम जैसा हम CF करते थे, पहले वैल्यू को सेम 1/4, फिर 1/4 एंड नेक्स्ट वाले को ऐड, तो 1/4 प्लस 2/4 3/4, फिर 3/4 प्लस 1 4/4, हो गया आंसर। ये आपका CDF हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? ये एक शॉर्टकट है, इसका एक्चुअली ये फॉर्मूला है कि f ऑफ x इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। यस, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, पहला जो मैं निकाल रहा हूँ f ऑफ x, वो किसके लिए निकाल रहा हूँ? 0 के लिए, तो यानी f ऑफ 0 इज 1/4, f ऑफ 1 इज 3/4, f ऑफ 2 इज 4/4। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, बट इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे? देखो, f ऑफ 0 इस फॉर्मूले से होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 क्या होगा इस टेबल में? 0 या 0 से छोटा कौन है? 0 ही है ना, तो इसका मतलब ओनली 0 बचा, x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है?
x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो पहले का आंसर हो गया 1/4 f0। उसके बाद आता है f1। f1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या आएगा? 1 या 1 से छोटा। 1 या 1 से छोटा मतलब 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। तो 0 की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4, 1 की प्रोबेबिलिटी दी गई है 2/4, ऐड करेंगे तो 3/4। यस बच्चों। एंड लास्ट f2। f2 होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। 2 या 2 से छोटा। 2 या 2 से छोटा क्या होगा? 0 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4, ये दिया है 2/4, ये दिया है 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप देखो यही तो आया था टेबल में भी अपने को, 1/4, 3/4, 1। इज इट क्लियर? तो ये लेंथी मेथड है, एक्चुअल फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किया, और टेबल अगर हमको मालूम है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, एंड दैट इज मोर इजी। क्लियर? फाइन। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फ्रेश। आपको मैं ये पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और फिर हम एक लेक्चर में पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, बट इसको एकदम अच्छे से आपको समझ में रिवाइज करके आना है, तो ही हम कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, नहीं तो मुझे वापस सब रिवाइज करना पड़ा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो आई विल नॉट रिवाइज एनीथिंग, आप अच्छे से करके आओ। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।